सभी लोगों को जय मसीह की और सुप्रभात और परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो। All right, thank you for the warm welcome as always, and I'm happy to be here. And as Jagveer was mentioning, he was mentioning that Ranjit had indicated that there are a lot of talents that will come out through the Zoom meeting that you're having. One of the talents that has come out is my teaching, which I did not know. So may all glory be to God. और जैसे कि भाई जगवीर बता रहे थे और ये बता रहे थे कि जैसे कि इस मीटिंग के जरिए भाई रंजित बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे छुपी हुई जो व्यक्तियों की जो टैलेंट है वो उभर करके आएगी और वो टैलेंट मेरे जीवन में जो है शिक्षा देने की जो टैलेंट है व गुण है वो मेरे से निकाल करके आया। इस बात को मैं पहले नहीं जानता था। All right. You are a professional. You are a God-gifted, teacher. You are very kind. Thank you, Ranjit. As I keep saying always, I've never been so involved in such deep studies, but I think the Lord has a purpose, and I'm happy that I could be used by the Lord as a vessel unto honor. और भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूं, लेकिन आपकी बातों जो आपका कोमल शब्दों के लिए मैं धन्यवादी हूं। All right, we will continue our study. I think yesterday we stopped midway when we were considering about Rephidim. और हम लोग जो है पिछले दिन रेफिदीम के बारे में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे और वहीं पर हम लोगों ने हमारा पढ़ाई को खत्म किया था। We will continue from there in terms of where we stopped. So we considered about Rephidim, what were the events that happened. So we will continue our study from the station called Rephidim, where the children of Israel had camped. और मेरे प्यारों, जैसे कि पिछले दिन हम लोगों ने रेफिदीम के विषय में पढ़ते हुए आ रहे थे, उसके विषय में आज हमारा अध्ययन हम लोग जारी रखेंगे, जहां पर वे लोग एकत्रित होकर के व झुंड बना करके वहां पर रहते थे। The three things that we considered yesterday is that at Rephidim, the children of Israel understood three important things which are applicable to us also. मेरे प्यारों, जो है हम लोग इज़राइल के लोगों के जरिए, जैसे कि वे लोग कभी सोचे और समझे भी नहीं थे, ऐसे काम उनके जीवन में हुआ था। उस तीन विषय को आज हम लोग फिर से दोहराएंगे, देखेंगे, और ऐसे घटनाएं आपके और मेरे जीवन में भी हो सकते हैं। First of all, the children of Israel got help from unexpected people. सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को देखा था कि इज़राइल के लोगों को इस तरीके से मदद मिला था, जैसे कि कभी उन लोगों से उम्मीद ही नहीं थी, ऐसे लोगों से उनको मदद मिली थी। Second is that they got help in an unexpected way. और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं कि जो उम्मीद नहीं किया हुआ जगहों से उनको क्या मिली, मतलब रास्ता से उनको जो है मदद मिली थी। The third was that they got help from an unexpected place. और मेरे प्यारों, तीसरी बात यह है कि जो है उनको जो मदद मिली थी और वो मदद उम्मीद नहीं किया हुआ जगह से उनको मदद मिली थी। So they never expected that Moses could give them water, because they complained against Moses and they were about to stone him to death. But through that very same person, the Lord enabled them to get water. मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि जो है मूसा के विषय में यदि देखें तो वे लोग मूसा के विरुद्ध कंप्लेन किया था, उसको पथराव करने वाले थे, मारने वाले थे, और उसी व्यक्ति से ही उनको जो है पानी मिला था। And second, in an unexpected way, they got water. They got water from the rock, which they never expected. और मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो है वो माध्यम जो थी वह जो आशा कभी की नहीं जा सकती, ऐसे माध्यम से उनको जो है पानी मिला था, वो है पत्थर। उस पत्थर से उनको जो है पानी मिला था। The third one is an unexpected place.
because they were complaining. They went round, they could not find water. No one expected that the least will be that from the rock that the Lord will give them water. So from an unexpected place where they knew mentally that it's and logically it's not possible, but the Lord gave them water from the rock. मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं, जो जगह थी, उस जगह जो है सूखा मरुभूमि और एक पत्थर ही था। वहां से कभी पानी निकलेगा, इस बात को कभी वे लोग सोच भी नहीं सकते, उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन जो है उस पत्थर से उनको पानी मिला। So brothers and sisters, when we depend on the Lord, and what we also considered yesterday is that these people, the children of Israel, were continuing to complain, were continuing to murmur about their daily necessities. और मेरे प्यारो, इस बात को हम लोगों ने कल भी देखा था कि लोग जो है लगातार उस परमेश्वर की उस विश्वस्तता के खिलाफ जो है बार-बार परमेश्वर के विरोध कर रहे थे। उनके खिलाफ जो है वे लोग कंप्लेन कर रहे थे। Now, in a similar way, we have to move from Rephidim forward. How long are we going to be complaining about our physical needs, about our social needs? This is what we have been considering yesterday, and that's important when we consider the station called Rephidim. मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोगों ने देखा, क्या हमें रेफिदिम में रहना है क्या? हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? हमारी जो है शारीरिक जरूरतें हैं, उसी के लिए हम लोग कंप्लेन करते रहें, या फिर हमारी सामाजिक जरूरतें हैं, उसी के लिए हम लोग जो है कंप्लेन करते रहें, या फिर हम लोगों को यहाँ ही रेफिदिम में ही रहना है, या फिर आगे बढ़ना है? Our God knows our needs. Our God has been helping us so far. What we are today is only by the grace and mercy of God. So that assurance should be with us always, even going forward, even when we reach a situation where we think there is no way, where we think we cannot get help from this person, where we think from this opportunity, how can I get help? All these negative thoughts should move away from our minds. मेरे प्यारो, जैसे कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा हर एक जरूरत को वो परमेश्वर पूरा करता है। हे मेरे प्यारो, क्या हम लोग वहीं पर ही रह जाएं क्या? उस अनुग्रह को हम लोगों ने जो अनुभव किया है, हमारा हर एक जरूरत को वो प्रभु पूरा करेगा, ये सोच रख करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। All right. Now, yesterday in my personal meditation and also in what I was preparing for today's class, there is one aspect from one psalm that came to me. So I want to spend a few minutes on that psalm, which is so very relevant for us today. And we'll move on, continuing our study from Rephidim. मेरे प्यारो, जैसे कि कल मैं एक विषय पर इसी विषय पर जो है मैं अध्ययन कर रहा था, ऐसे वक्त में मुझे एक भजन संगीता याद आई और उस भजन संगीता को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं, फिर बाद में अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। All right. Now this was my personal meditation, and in my personal meditation, my thoughts were about Rephidim, and as I was doing my regular study in my personal devotion, what I'm going to show to you is something that came to me very personally, and I felt it very appropriate for all of us, and that's what I'm going to do for the next few minutes. मेरे प्यारो, जैसे कि ये मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है, मेरे व्यक्तिगत जो है ध्यान है। जब मैं भजन संगीता के और अध्ययन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, उस वक्त उस रेफिदीम नामक जगह के विषय में मुझे याद आई। इसीलिए आप लोगों के साथ मैं आज इस बात को साझा करना चाहता हूं। All right, I want us all to turn to Psalm 42. और भजन संगीता 42वां आयत में हम लोग चलते हैं। भजन संगीता 42 42वां आयत। All right, I want us all to read that Psalm 42. If one of us can help in reading the whole Psalm, it'll be nice. और कोई भजन संगीता उसका 42वां अध्याय को पढ़ने में कोई हमारी मदद करें। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं और लोग
दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं एर्दन के पास के देश से और हार्मोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चला फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Thank you, brother, and God bless you. And may God bless this reading of this psalm to all of us and make it meaningful as we try to understand this psalm. मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भजन संगीता को पढ़ा। इस वचन पढ़े जाने से प्रभु हम सबको आशीष करे। जैसे कि हम इस भजन संगीता को पढ़ते हैं, आइए जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए अर्थपूर्ण हो। Now, any single person can go without food for about 30 or 40 days. मेरे प्यारो, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है ना, बिना खाना खाए 30 या 40 दिन तक अपना जीवन को व्यतीत कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। And a person can go without water for about 3 or 4 days. मेरे प्यारो, एक व्यक्ति को यदि जीना है तो 3 या 4 दिन तक बिना पानी पिए भी अपना जीवन को जो है सरवाइव कर सकता है। After that, the extreme necessity of water will drive him to find water. लेकिन उसके बाद जो है, जो पानी की जरूरत, उसको जो प्यास है, वो क्या करेगी ना, पानी के और कहाँ है उसके तलाश में, ताक में वो घूमता फिरता रहेगा। Now, this is a psalm of David. This psalm is a psalm of David. और ये जो भजन है, ये दाऊद का एक भजन है। In this psalm, David is thirsting after God. मेरे प्यारो, इस भजन में हम लोग देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के लिए वो प्यासा है। Now, this psalm, David is craving God's attention, which means he's deeply longing for God's attention. मेरे प्यारो, इस भजन में हम लोग यदि देखें तो दाऊद क्या करता है ना, परमेश्वर का ध्यान दाऊद के ऊपर हो, इसीलिए वो उसकी ताक और तलाश में है। As much as he's longing for God's attention, God's presence, that he wants to be satiated with that, there is an internal feeling that he is being abandoned. मेरे प्यारो, जैसे कि परमेश्वर के लिए वो प्यासा है, परमेश्वर जो है उसके प्रति ध्यान दे, जितना ही वो ध्यान केंद्रित परमेश्वर के ओर से वो चाहता है, उतना ही उसका जीवन में यदि देखें तो फिर जो है बहुत निराशा में है। He longed for God's presence. मेरे प्यारो, वो अपने जीवन में यदि देखें तो परमेश्वर का उपस्थिति के लिए उसके जीवन में बहुत बड़ी एक चाहत थी। As much as he was longing for God's presence, he found no relief. He found no response. He found no solace. मेरे प्यारो, जितना ही परमेश्वर की आशा में वो रहता था, ताक में रहता था, लेकिन उसके जीवन में कभी तसल्ली और शांति नहीं मिली। He felt God was not providing him an answer.
मेरे प्यारों, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि अरे परमेश्वर मेरी सवालों का और मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा उसको लग रही थी। Brothers and sisters, do we feel lonely at times? मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जो है कभी-कभार ऐसा अकेलापन महसूस करते हैं क्या? Brothers and sisters, do we feel that I have put all my trust, all my faith in God, and yet I am lonely? I'm not getting an answer. मेरे प्यारों, क्या आपका जीवन में ऐसा लगा है, कभी ऐसा अनुभव में आप आए हैं क्या? अरे मैंने तो पूरा मेरे जीवन में पूरा के पूरा भरोसा, विश्वास प्रभु के ऊपर मैंने झोंक दिया है, लगा दिया है, फिर भी मैं अकेलापन महसूस क्यों कर रहा हूँ? क्या आप ऐसा महसूस किए हैं क्या अपने जीवन में? Listen to me carefully. Are we thirsting for God, for God's presence, for God to answer us? Are we longing for that? क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि प्रभु का उपस्थिति मेरे जीवन में हो, प्रभु मेरे करीब रहे, इसके लिए क्या आप और मैं प्यासे हैं क्या? Are we weeping for His help? Are we crying day and night for His help? मेरे प्यारों, क्या हम दिन और रात परमेश्वर की उस मदद के लिए क्या आप और मैं दिन और रात रोते हैं क्या? Do we have a feeling that I am trusting on God, but the others are mocking me? The others are ridiculing me. The others are making fun of me that I am trusting in this God and I still don't have an answer? मेरे प्यारों, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कैसा आप जो है ऐसा अनुभव में है क्या, जब मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा आपके जीवन में कभी आप ऐसे अनुभव में आए हैं क्या? Now, that is what we find in the first three verses. मेरे प्यारों, वही बात को हम जो पहले If we read the first three verses again, can one of you read the first three verses again? This is what David is longing for, and this is what David's situation is. The first three verses. मेरे प्यारों, जैसे पहला 3 वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। वही है दाऊद का अनुभव, इसी अनुभव से वो गुजर रहे हैं। पहले 3 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? All right. Now, I've already explained that. That is the position of David. And brothers and sisters, these three verses speak to us. Is that our position today? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके विषय में मैं आप लोगों को विस्तार कर चुका हूं कि क्या ऐसे ही दाऊद का जो परिस्थिति है, दाऊद का जैसा अनुभव है, क्या आपका और मेरा भी ऐसे ही अनुभव है क्या मेरे प्यारों? We desperately want God to feel God's presence. मेरे प्यारों, हम जो है बड़ी चाहत रखते हैं कि हम हमारे बीच में आकर के हमारे उस खालीपन को परमेश्वर पूरा करे। We are longing for some tangible sign, which means a sign that we can see, touch, and feel that God is helping us. We are longing for that, is it not? मेरे प्यारों, क्या हम जो है ऐसा महसूस ऐसा अनुभव नहीं करते हैं कि क्या मेरे पास जो है वो परमेश्वर आए और मेरे को परमेश्वर कुछ ऐसा चिन्ह दिखाए कि उसको मैं छू सकूं, मेरे जीवन में मैं अनुभव कर सकूं, और जो घटनाएं हैं मेरे आंखों के सामने वो हो, मैं देख सकूं। क्या आप और मैं ऐसे अनुभवों का ताक और तलाश में नहीं रहते हैं क्या? When we are in such a situation, now this can lead us to depression and discouragement also. Such situations can lead the believer to depression and discouragement as well. मेरे प्यारों, क्या होता है कि ऐसे ही ताक और तलाश में बा ऐसे ही अनुभव मेरे जीवन में हो, इसके लिए क्या होता है कि यदि नहीं होता है तो हम जो है निरुत्साहित हो जाते हैं।
When we are going through such situations, when we are longing for God's presence, but we are not able to feel His presence, we have this fear that others are mocking us. See, look at him. He's talking so much about his faith, but the Lord has not answered it. When we are going through such a situation, there is a remedy for this in this psalm. ओ मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग ऐसे जो है ऐसे अनुभवों का इंतजार करते हैं, हम जो है लोगों के सामने देखो मेरा परमेश्वर इतना महान है, ऐसी-ऐसी बातों को हम लोग कहते हैं और ऐसा तो वो परमेश्वर के बारे में ऐसा-ऐसा कहता है, लेकिन उसकी प्रार्थना तो परमेश्वर ने कभी नहीं सुना। ऐसा करके लोग जो है आपको परिहास करते हैं, ठट्टा, मजाक उड़ाते हैं। What is the remedy that we find in this psalm? मेरे प्यारो, इस भजन संगीता में उसका जो है परिणाम हम लोग क्या देख सकते हैं, उसका जो है निराकरण क्या देख सकते हैं। Brothers and sisters, remember God's great blessing in your life till day. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक परमेश्वर ने जो आपके जीवन में जो आशीषें की हैं, उन आशीषों को आज आप स्मरण करें। Although he appears to be silent in our lives, yet he is there and he is worthy to be praised. ओ मेरे प्यारो, भले ही परमेश्वर आपके जीवन में जो है कार्य ना करके वो शांत होकर के हैं, लेकिन उसकी अनुग्रह, उसकी करुणा आपकी और मेरे जीवन में अपार है मेरे प्यारो। That's what we read in verses 4 and 5. Let's read verse 4 and 5. आइए हम लोग जो है चौथा और पांचवा पद को पढ़ें। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Brothers and sisters, David in this psalm is teaching us when we are thirsting for God's help, God's support, God's provision, we are not finding an answer. He's now teaching us and encouraging us that you must appreciate God's help, God's support, and praise Him for all that He has done till now. That's what we read in verses 4 and 5. ओ मेरे प्यारो, जो है जैसे कि लोग ठट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, परिहास करते हैं, ऐसे वक्त में जो है आपको क्या करना है, कभी भी निरुत्साहित नहीं होना है। परमेश्वर ने आज तक जो अनुग्रह किया है, दया की है, मदद की है, जो है पिछले दिनों से लेकर के अभी तक जो मदद की है, उस मदद को आपको और मुझे स्मरण करने की जरूरत है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। You see, David is soaking himself in God's beautiful creation. He is thinking of God's beautiful creation, and he is moving away from his present situation of thirsting for God's reply and response and support. He's moving away from that, and he's soaking himself in God's beautiful creation. ओ मेरे प्यारो, आप देख करके देखिए, जो है परमेश्वर का उस उपस्थिति में रहते हुए दाऊद जो है, परमेश्वर ने मुझे मदद किया है या नहीं किया है, वो सब कुछ को भूल करके परमेश्वर की उस महान जो सृष्टि है उसके ओर जा करके अपने आप को, उसका ध्यान जो है उसी में वो डुबा देता है। That's what we read in verse 6. Can we read verse 6? आइए हम लोग छठवां पद को पढ़ लेते हैं, वही बात को हम छठवां पद में पढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं एर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। You see, this is how David is responding. He's thinking about God's greatness, and he is meditating on how big and great this God is, and he's putting his confidence on such a great God. मेरे प्यारो, इस पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस पद में हम लोग इसी बात को देखते हैं। देखिए दाऊद क्या कर रहे हैं, ना अपना भरोसा उस पहाड़ों को बनाने वाला परमेश्वर, उस अति महान परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा करते हैं। And then in verse 7 and 8,
we read that David realizes God's love for him always. It's not for a moment, for a minute, for an hour, for a day, for a week, for a month, for a year. It's always. That is what we read in verses 7 and 8. ओ मेरे प्यारो, जब 7वां और 8वां पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि जो है दाऊद हर समय क्या करता है ना, उस परमेश्वर की प्रेम को एक बार नहीं बल्कि हर बार, प्रत्येक बार वो क्या करता है, उस परमेश्वर का प्रेम को वो याद करता है, स्मरण करता है। I will read verse 7 and 8. आइए हम लोग 7वां और 8वां पद को पढ़ लें। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। All right. And finally, in verse 11, we find that David is faithfully, he's loyal, he's faithfully expecting God to act. मेरे प्यारो, जब हम लोग आखिरी 11 पद में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं ना, जो है दाऊद अपने आप को बड़े नम्रता के साथ, बड़े विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के हाथ में समर्पित होकर के वो यही आशा रखता है कि परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। Let's read verse 11. आइए 11 पद को भी पढ़ लें। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। David starts with thirsting for God's answer, presence, and response, and he ends by confiding faithfully that God is acting, he is going to act. मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग देखते हैं दाऊद जो है अपना किस तरीके से इस भजन को शुरू करते हैं, बहुत प्यासे, बहुत भूखे, और परमेश्वर के उसके जीवन में उसकी उपस्थिति को चाहते हुए इस भजन को शुरू करते हैं। आखिरी में हम लोग देखते हैं कि जो है बड़े नम्रता के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर कार्य करेगा, इसी आशा से इस भजन को वो अंत करते हैं। When he starts in the first verse, he says, "My soul is panting after thee, O God." That's how he's starting. और कैसे शुरू करता है ना, हम लोग देखते हैं कि मेरा प्राण जो है तेरे लिए प्यासा है, इस तरीके से वो शुरू करता है। But when he ends it in verse 11, he says, "Hope thou in God." और मेरे प्यारो, जब 11 पद को हम लोग देखते हैं ना, आप परमेश्वर के ओर आशा लगाना, यहोवा के ओर आशा लगाना। Brothers and sisters, when I was meditating the psalm yesterday morning in my personal devotion, this thought came to me many a times, or every day, or quite often we are challenged when we don't receive God's answer, when we are searching for him. We are so desperate. We are so discouraged. We are searching for him. We want his help. We want him to answer our prayers. We want to feel his presence with us. And when we do that, we don't find it. Many times our hearts are discouraged. We have this fear, what will others think? Well, others will think that he's such a believer, he's such a faithful man of God, he's such a faithful person, but he's going through this, his God is not answering. In all the multitude of these thoughts, David is encouraging himself about God's greatness, about God, what he has done for him so far, about God as a creator, and then his hope is faithfully resting that God will act or God will answer. मेरे प्यारो, आप देख करके देखिए, जब आपका भरोसा उस सच्चा परमेश्वर के ऊपर होता है, आपका विश्वास उसके ऊपर होता है, और फिर जो है पूरा मन, आपका ध्यान उस परमेश्वर के ऊपर होने के बाद जब जो है परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं आता, जवाब नहीं मिलती, तो आप निरुत्साहित हो जाते हैं। लोग जो है परिहास करते हैं, ठट्टा और आपका जो है मजाक उड़ाते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप जो है निरुत्साहित हो जाते हैं। लेकिन दाऊद इस बात को कहते हैं, ऐसे परिस्थिति में भी यहोवा के ओर आपका भरोसा होना चाहिए।
Now, this, brothers and sisters, I had no intention of sharing this. This is my personal devotion. But as I strongly feel led by the Holy Spirit, I felt I should share this because this was very relevant in the case of the children of Israel. They were thirsting, and in a desert, when you thirst for water, you don't get it, you feel so desperate. I was also led into that such kind of a situation. You're looking for God's help, but you feel God is not there. You feel God is not helping. God is not answering. So how did David react to it? This is what I felt led by the Holy Spirit to share it with you. And for God's glory, I shared it with you as we continue our study from the children of Israel as they stay in Rephidim. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि हम लोग रफीदीम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, मैं जब व्यक्तिगत रूप से इस वचन को मैं अध्ययन कर रहा था, तो मुझे प्रतीत हुआ कि मैं आप लोगों के साथ जो है ये भजन मैं साझा करूं, आप लोगों के साथ में बांटूं कि मेरे जीवन में भी कभी-कभार ऐसा बहुत सारे अनुभव से मैंने अपने जीवन में मैं गुजरते हुए गया हूं। और ये जो दाऊद भी अपने जीवन में उस इज़राइल के लोगों के जैसा जो है अनुभव किया था, उसी अनुभव को जो है मैं आप लोगों के साथ साझा किया हूं। ऐसा लगता है कि जो है परमेश्वर कुछ कार्य नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। ऐसे वक्त में जो है आपको और मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, उस परमेश्वर के अनुग्रह का स्मरण करने की जरूरत है, जैसे कि इज़राइल के लोग भी ऐसे ही अनुभव से वे लोग उस रफीदीम में गुजर रहे थे। Now, look at the children of Israel. We'll come back to Rephidim. We'll try and understand that. I just give you a practical aspect from Psalm 42. But coming back to Rephidim, the children of Israel were fighting. They were whining. They were complaining. They were dissatisfied. And all these things led to rebelling against Moses. मेरे प्यारो, आप देख करके देखिए इज़राइल के लोग जो है उस रफीदीम में वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग कैसे पाप में गिरे हैं। मेरे प्यारो, वे लोग जो है अविश्वस्त रहे हैं, वो जो है एक जो है मूसा के विरुद्ध जो है कंप्लेन करने लगे हैं। और हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि जो है वे लोग अविश्वस्त वहां पर रहे हैं, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। Brothers and sisters, when we are desperate for an answer, when we desperately want God to answer us, when we desperately want God to give us an answer, and when we don't find that answer, there are many things that cross our minds, and sometimes we act also according to what the mind says, rather than waiting for God to answer and give us His unction or His sanction. मेरे प्यारो, क्या होता है कि जो है हम परमेश्वर के उस उत्तर का इंतजार करते हैं, लेकिन जो है उस उत्तर आपको और मुझे नहीं मिलती है, तो उसी का ताक में जो है हम लोग रहते हैं, हम गुस्से हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। And then see what God is doing in the life of the children of Israel in such a situation when they were complaining against God and they were about to stone Moses to death. मेरे प्यारो, आप देख करके देखिए, जब वे लोग जो है मूसा के खिलाफ आरोप लगाने लगे हैं और मूसा को जो है वे लोग मारने पर उतरे हैं, ऐसे वक्त में देखिए परमेश्वर किस तरीके से कार्य उनके You जीवन see, में कर रहा है। God sends Amalekites against the children of Israel. मेरे प्यारो, आप देखो कि जो है इज़राइल के विरुद्ध परमेश्वर उस अमालेकियों के लोगों को वो भेजता है। Now, God was diverting their attention, or God was trying to teach them a lesson by sending the Amalekites. मेरे प्यारो, देखिए कि परमेश्वर उनका ध्यान को जो है भटकाने के लिए प्रयास कर रहे थे और परमेश्वर जो है उनको कुछ सिखाने के लिए अमालेकियों को जो है उनके बीच में भेजते हैं। Because the children of Israel were not in the mood to listen. They were not in the mood to reason out. They were not in the mood to go back and understand how the Lord has helped them. Their immediate need was that they are thirsty. They want water. God has not given them water. That was their immediate need. So the Lord is diverting their attention to something greater than that. वो मेरे प्यारो, आप देख करके देखिए इज़राइल के लोगों का जो वर्तमान जरूरत थी वो पानी की जरूरत थी, और वो पानी की जरूरत के समय में उन लोगों ने क्या किया है ना, उनको ऐसा लगने लगा है कि जो है उनका वही है सबसे बड़ी जरूरत है, इसीलिए
उन्होंने क्या किया है मेरे प्यारो, वो परमेश्वर के विरुद्ध कंप्लेन करने लगे हैं। परमेश्वर इसीलिए उनका ध्यान को भटकाना चाह रहे हैं। वो इसीलिए भटकाना चाह रहे हैं कि जो है परमेश्वर इससे बढ़ कर के कार्य करने वाले हैं। The Lord brought an adverse situation in their life. मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है उससे एक विपरीत परिस्थिति को उनके जीवन में लाया। An unexpected situation the Lord brought in their lives. ओ मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक वे लोग कभी उम्मीद ही नहीं किया था, ऐसे परिस्थितियों को उनके बीच में परमेश्वर लाया। As I said yesterday, this is the first nation in their wilderness journey who came up against the Israelites. मेरे प्यारो, जैसे कि मैंने कल कहा था, यही एक पहला देश है जो देश की जो है अपना इजराइल जो मरु यात्रा कर रही थी, उस मरु यात्रा करते समय यही एक पहला देश है जो इजराइल के विरुद्ध खड़ा हुआ है। The Lord was making them forget their situation where there is a need for water. He was bringing a different situation in their life. मेरे प्यारो, जैसे कि जो है इजराइल का जरूरत पानी की थी, लेकिन परमेश्वर उनका जो परिस्थितियों को वो बदलना चाह रहा था, इसीलिए एक दूसरा अनुभव से एक दूसरा परिस्थिति को उनके सामने लाने पर है। And we all know from history and from that chapter that the Lord gave them victory. मेरे प्यारो, इस बात को आप और मैं जानते हैं कि जो है उस अध्याय को पढ़ने से हम और उस इतिहास को भी हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने उस युद्ध से उनको विजय दिया है। All right, now turn to Exodus chapter 17. Let's read those two verses 15 and 16. आइए हम लोग जो है निर्गमन का पुस्तक उसका 17वां अध्याय 15 और 16वां पद को पढ़ लेते हैं। Exodus 17, 15 and 16. Yes. तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। All right. So the Lord was saying, by this Jehovah Nissi means the Lord is my banner. और मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं इसी जो युद्ध के बाद जो है परमेश्वर मेरा जो है यहोवा मेरा निशी है कि वो क्या दर्शाता है कि परमेश्वर मेरा ध्वज है, मेरा झंडा है। All right. Now this is a new lesson in their life that the Lord was teaching them. और मेरे प्यारो, यही एक नई शिक्षा और सीख है परमेश्वर उनको सिखाना चाह रहा था। All right. And by doing this, by bringing the Amalekites in their life, what was God trying to achieve? मेरे प्यारो, जो है यही कार्य करके अमलेकियों को इजरायलियों को बीच में ला करके परमेश्वर इजरायलियों को क्या शिक्षा देना चाह रहा था? Something bigger than what they needed at the time when the Lord brought it in their life, like the Amalekites fighting them for the first time, an enemy in their wilderness journey, that taught them a lot of new lessons. ओ मेरे प्यारो, जैसे कि जो है हम लोग देखते हैं वो शत्रुओं को, अमलेकियों को उनके बीच में ला करके परमेश्वर एक नई सीख को उनको सिखाना चाह रहा था। What were the lessons? The lessons number one were to forgive one another. मेरे प्यारो, क्या परमेश्वर कौन सी सीख को सिखाना चाह रहा था? वो लेसन जो है वो सीख यही थी कि एक दूसरे को माफ करना सीखे। Number two, praying for one another. मेरे प्यारो, दूसरी शिक्षा परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा था कि एक दूसरे के लिए वे प्रार्थना करें। Number three, coming more closely together to be found in God's presence. ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर यही सीख सिखाना चाह रहा था कि उसके वेदी के पास आए, परमेश्वर की उस उपस्थिति के पास जो है और करीब हो जाए। Brothers and sisters, a big situation or a big crisis in our life will bring about these changes which God wants in our lives. मेरे प्यारो, ऐसे जो है बड़ा और अति जो है बड़ा समस्याएं और जो है परिस्थितियां हमारे जीवन में यही बदलाहट को आपके जीवन में लाता है। So we move from Rephidim now to the next station, which is called the Sinai Wilderness.
ओ मेरे प्यारो, अभी हम वर्तमान में उस रफीदीम को छोड़ करके जो है सीनोई उस मरुभूमि की ओर हम लोग चलते हैं। We have spent a lot of time on Rephidim. Now we move on from Rephidim to the Sinai wilderness. और मेरे प्यारो, हम लोगों ने बहुत समय जो है रफीदीम में अपना समय को गुजारा है। आइए हम लोग सीनोई उस मरुभूमि की ओर चलते हैं। The meaning of this Sinai wilderness means weakness. मेरे प्यारो, ये जो सीनोई का जो मरुभूमि का अर्थ होता है हमारी निर्बलता। Let's read Exodus chapter 19 and read verses 1 and 2. आइए हम लोग जो है निर्गमन का पुस्तक उसका 19वां अध्याय पहला और दूसरा पद को पढ़ते हैं। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रफीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। All right, one more verse, brother. Numbers 33 and verse 15. और आइए हम लोग गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय और 15वां आयत को भी पढ़ लेते हैं। फिर उन्होंने रफीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में डेरे डाले। All right. Now, so far on the screen, you see very quickly I'm doing it. So far, we have covered 11 locations, 11 stations the children of Israel have traveled. मेरे प्यारो, अभी तक हम लोगों ने जो है जो 11 ऐसी जगह है उस जगह को उन्होंने पार कर लिए हैं। We are moving on to the 12th location station, which is called the Sinai wilderness. और मेरे प्यारो, अभी वर्तमान में हम लोग जो है उस सीनोई जो जगह है उस मरुभूमि की ओर हम लोग अभी जा रहे हैं। Now, this appears to be the final camp location of the children of Israel. मेरे प्यारो, यही एक जगह है जहां पर अब वे लोग आखिरी बार अपना तंबू गाड़ने वाले हैं। The same day they came into the wilderness of Sinai. That's what we read there. And this camp or this location is as the foot of Mount Sinai. It's at the foot of the mount. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं ये जो मरुभूमि है, इस मरुभूमि के जस्ट आगे जो है सीनोई जो है सीना जो पहाड़ है, पर्वत है, उस पर्वत को हम लोग देखते हैं। Now, this is the place where we read in Acts chapter 7 and verse 30. Can we read that? Acts 7:30. We read where Moses found the burning bush. और यही एक जगह है जहां पर जो है मूसा उस जलता हुआ झाड़ी को पाया था। आइए हम लोग प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 30वां आयत को पढ़ लेते हैं। Acts 7:30. प्रेरितों के काम 7:30। 7:30। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी उसने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया। Verse 7:30, brother. Jagveer? जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में से उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। All right. So this wilderness of sin, or the Sinai wilderness, is the place where Lord appeared to Moses and told Moses he's got to liberate the children of Israel from the captivity of the Egyptians. मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं, इसी पहाड़ जो सीनोई पहाड़ है जो है उस मरुभूमि सीन मरुभूमि में हम लोग देखते हैं, उसी में ही जो है मूसा को उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया था। All right. Now this camp where they are now camping is an important place. It assumes a lot of significance. It's very important. मेरे प्यारो, जहां पर अभी उन्होंने डेरा डाला है उस जगह बहुत महत्वपूर्ण है। Why is it important? मेरे प्यारो, ये जगह क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? First of all, they were liberated from Egyptian captivity, from slavery. They came out from slavery.
मेरे प्यारो, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लोग जो है उस बंदवाई से और उस गुलामी से वे लोग आजाद हुए थे। And second, they came out to worship the Lord. और दूसरी बात ये है कि वे लोग जो है आराधना करने के लिए बाहर निकाल करके आते हैं। And the third thing is they are now on the verge of receiving the 10 commandments. और तीसरी बात ये है कि अभी जो है वे लोग उस 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने वाले हैं। All right. Now, this is the significance of this particular camp where the children of Israel are camping right now. और यही एक जगह है जहां पर जो है इज़राइल के लोग अभी वर्तमान में डेरा डाले हुए हैं। All right. Now, okay. Now, there are quite a few references that we can see in the scripture which speaks to us a lot about the Sinai wilderness location which the children of Israel stayed. मेरे प्यारो, बहुत सारे ऐसे जो है परमेश्वर का वचन का रेफरेंस को हम लोग देखते हैं जहां पर जो है उस सीनोई पहाड़ के विषय में कहा गया है, जहां पर वे लोग उसमें डेरा डाले थे। All right, I put all that in this in this presentation. When I circulate it, you can make those references, you can read it. This is for your personal study. मेरे प्यारो, उन वचनों को मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने मैंने रखा है, उस नोट्स में है। जब वो नोट्स आपको दिया जाएगा तो जो है आप लोग उन वचनों को ध्यान से आप पढ़ लेना। So this wilderness of sin is one of the 6 wilderness areas which the children of Israel crossed in their wilderness journey. मेरे प्यारो, जैसे कि इज़राइल के लोग यात्रा कर रहे थे, उस यात्राओं के दरमियान उन्होंने जो है 6 मरुभूमि का यात्रा उन्होंने किया था, उसमें से ये एक मरुभूमि थी। All right. Now, in the map here, I don't think you can see the screen now. It's not come. So, yeah. In the screen that has come now, you can see the arrows that I have plotted. All these are the 6 different wildernesses that are mentioned in the Israelite journey. मेरे प्यारो, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर जो तीर का निशान दिया गया है, यही जो तीर का निशान जो है 6 जो मरुभूमि है, उस मरुभूमि को इज़राइल के लोगों ने पार किया था। You see, this one is the wilderness of Shur. That's the first one. और सबसे पहले जो शूर का विल्डरनेस है, वो पहली जो विल्डरनेस थी, मरुभूमि थी, उसको उन्होंने पार किया था। Then it is the wilderness of Etham. और दूसरा मरुभूमि थी ईथाम। And then you have the wilderness of Sin. और तीसरा जो मरुभूमि थी वो है सिन की मरुभूमि थी। And then now what we are now considering at the foot of the Mount Sinai, we have the wilderness of Sinai. और जो है उस सीनोई पहाड़ है, उस पहाड़ का जो नीचे जो मरुभूमि सीनोई मरुभूमि है, उस मरुभूमि के और अभी हम वर्तमान देख रहे हैं। And then you have the next location that we will be covering shortly will be the wilderness of Paran. और जो है अभी आप जो है आने वाला वक्त में हम लोग जो है दूसरा अगला मरुभूमि के और देखने वाले हैं, वो है पारान मरुभूमि है। And then finally we have in the map you have the wilderness of Zin. और मेरे प्यारो, आखिरी जो मरुभूमि होने वाली है वो जिन मरुभूमि होने वाली है। And it's going to be a few months or maybe a year later from now when the children of Israel will enter the wilderness of Zin. और जो है हो सकता है कि काफी साल लग जाएगा, 1 साल के बाद जो है इस मरुभूमि में वे लोग प्रवेश करने वाले हैं। All right. Okay. Now, all right. I've given you some references here on the screen. If you can see that, we find that between the oasis of Elim and Mount Sinai, the wilderness of Sin is found. Once again, uncle, Elim and yeah, between the oasis of Elim and Mount Sinai, between Mount Sinai and Elim, which they crossed, you will find the wilderness of Sin or the Sinai wilderness that we are studying now.
मेरे प्यारो, जैसे कि आप एलीम उस जो जगह है जहाँ पर जो मरुपच्चा थी उस जगह, और आप यदि उस सिन मरुभूमि को देखेंगे उसके बीच में आप लोग जो है इस पहाड़ को आप देख सकते हैं, सीनोई पहाड़ को देख सकते हैं। And we have already considered that the children of Israel complained against the Lord for many things. About food, and that God gave them manna. Then about water, God gave them water from the rock. मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को भी देखते हैं जैसे कि अपना मरु यात्रा के समय में इज़राइल के लोग परमेश्वर के विरुद्धाचरण किया, परमेश्वर के विरुद्ध आरोप और प्रत्यारोप लगाया, और जो है उन्होंने पानी के लिए कंप्लेन किया था तो परमेश्वर ने पानी दी, भोजन का जो है कंप्लेन किया था, परमेश्वर ने मन्ना दिया। It was the first time that we read here that when they complained about food, God gave them manna, which is the food from heaven or bread from heaven. और ये पहली बार थी जब लोगों ने जो है कुड़कुड़ाने लगे थे और आरोप लगाने लगे थे, ऐसे वक्त में उस सीन नामक पहाड़ में परमेश्वर ने उनको भोजन दिया था, मन्ना दिया था। And it is in this wilderness here that the Lord also gave them flesh and meat for them to eat. मेरे प्यारों, यही एक जो पहाड़ थी उसी पहाड़ में ही परमेश्वर ने जो है उनको खाने के लिए उस पक्षियों को दिया था, व मांस उन लोगों को दिया था। When they got fed up of eating the manna which God gave them, they want their tongues and their mouth longed for flesh, and God gave them the quails or the flesh for them to eat. मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब वे लोग उस मन्ना खा करके वो जो है बहुत ही ज्यादा खा करके उनका जीभ जो है स्वाधीन हो गया था, ऐसे वक्त में वे लोग कुड़कुड़ाने लगे कि उनको मांस चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने पक्षियों का बेदारी भेज करके उनको मांस खाने के लिए दिया था। And also, as we considered at Rephidim, they complained about water, they complained about thirst, and God gave them water to drink. और फिर बाद में हम लोगों ने इस बात को देखा कि रफीदीम में आने के बाद जो है वे लोग पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे थे, परमेश्वर के विरुद्ध जो है कंप्लेन करने लगे थे, इसीलिए परमेश्वर पीने के लिए पानी दिया था। Now, the Bible scholars say the wilderness of sin, or the Sinai wilderness that we're considering now, the name sin perhaps has come because it's the name of the moon god. और मेरी प्यारो, जैसे कि हम लोग देखते हैं उस जो है सिन नामक जो जगह है, वो कुछ बाइबल विज्ञान व बाइबल जो है पंडित लोग इस तरीके से कहते हैं कि ये जो शब्द जो है किस तरीके से आया, ना उस जो है चंद्रमा को एक चंद्र को जो है भगवान के रूप में मानते थे, इसीलिए उसके नाम पर ये जो मरुभूमि का नाम रखा गया है। All right. Now, what do we understand? What do we learn? What is the spiritual implication from the wilderness of sin for us? मेरे प्यारो, इससे जो है सीन नामक उस मरुभूमि से हम लोग अपने जीवन में कौन सी ऐसी जो है प्रायोगिक जीवन की सीख सीख सकते हैं? I will say this, and I'll quickly say this, and we will close for today. और इस बात को मैं कह करके आज की मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। At some stage in life, we will experience God revealing certain things to us. ओ मेरे प्यारो, कभी ऐसा परिस्थितियां आती है, ऐसे परिस्थितियों में हम इस बात को समझते हैं कि अरे परमेश्वर जो है मेरे जीवन में इस बात को प्रकाश कर रहा है। The Sinai moment in the life of the children of Israel, God revealed many things to them in that wilderness. मेरे प्यारो, जैसे कि उस सीनोए जो सीनोए की परिस्थिति थी, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उनके जीवन में बहुत कुछ राज उनके सामने खोल करके रख दिया। All right. And in our lives too, there are situations when God reveals himself, God reveals more better truths, more than what we have understood. When we spend time in his presence, God reveals more of himself to us. मेरे प्यारो, ऐसे परिस्थितियां हैं जैसे कि आपके और मेरे जीवन में भी होता है, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर बहुत सारे ऐसे सच्चाइयों को आपके और मेरे सामने प्रकाशित कर देते हैं। The wilderness of sin or Sinai is an experience where God teaches new things from the scripture. God teaches new truths when we meditate on his word.
मेरे प्यारो जो है, जो सीनोई के अनुभव को यदि देखें तो परमेश्वर बहुत सारे ऐसी नई नई राज, नई नई शिक्षा, नई नई संदेश को जो है वो परमेश्वर सिखाना चाहता है। And when these truths are revealed to us, one objective of these truths revealing to us is uniting us together. मेरे प्यारो जब ये सच्चाई आपके और मेरे सामने प्रकाशित होता है, वो सच्चाई यही है कि जो है हम सभी लोगों को परमेश्वर एकत्रित करता है, मिला देता है। Now, that was the experience in the life of children of Israel, where they got all the children of Israel united together and to act as one. मेरे प्यारो यही एक अनुभव जो है उस सीनोई के पहाड़ के नीचे जो है थी, जो है परमेश्वर इज़राइल के लोगों को, सभी लोगों को एक कर दिया था, एकत्रित कर दिया था। All right, I'm going to stop here because God willing, next week we will consider what are the lessons. There are a few lessons. There are at least 6 lessons we can learn from this station where in the wilderness of Sinai. What did it teach the children of Israel? What is it going to teach